Good morning, students. My name is Manisha Isai, and for you today, I am your English teacher. And in lecture 1, I am going to teach you chapter 1 of your textbook. You know that as according to NCERT syllabus, there are 2 textbooks. This year, you have 2 English textbooks. One is Beehive. It contains prose and poetry. Second, Moments. It is a supplementary reader. Okay, so these 2 textbooks you have to follow. So from Beehive today, I am taking your first prose. So the name of your first lesson is The Fun They Had. Actually, it is a little bit weird title and you are not getting anything about that. So the fun they had means what? Okay. So here I have written some characters over. So here you have to get the understanding that which characters are playing the role in this chapter. The name of the characters are Margie, is an 11 years old girl. Tommy, her brother, 13 years old. Their grandfather, county inspector, is a inspector, or we can say that mechanical inspector of the computer who is repairing all the computers and virtual classroom. Now students, before starting the chapter, I want to tell you what is virtual classroom, means the difference between virtual and actual. Last year, what was the system? You are all coming in the school, attending the class, in every lecture the teacher is coming and directly the teacher is teaching to you. Means physically the teacher is coming. Okay. So and virtual classroom means what? Right now, whatever the education you all are taking, this is known as virtual classroom. Here, I am not your physical teacher, you are just attending my lecture in mobile or in computer. Okay. Your virtual classroom means what? In your home, you have your own room and in that you place a computer and this is your classroom only. Means what? There is no need to go to school. There is no need to make or to build a special building like school. This is known as virtual classroom. So in this chapter, the fun they had, the author tried to explain about the importance of this. Actually, this chapter explains about the after centuries like 2157. Today 2020 is going on. Okay. Then whenever there is 2157 year will be there, at that time no physical schools existence will be there, no physical teachers are there. You have to sit at your home only and start your learning and reading process. You can give your test in your computers only, and this computer will teach you not the standard. In our actual classroom, what is the system? You are coming in standard 1, then 2, 3, 4, okay, so it's going on. But in virtual classroom, you have given the levels that just you are playing the games, you know. So whenever you are playing the games, so in the game, you have some levels. Level 1, level 2, level 3. This type of virtual classrooms are there. उनको पता है जब तुम लोग अभी के जो एक्चुअल क्लासरूम की अगर बात करें हम लोग, तो क्या होता है उसमें सिस्टम, तुम लोग को स्टैंडर्ड 1 फिर 2 3 ऐसे जाना पड़ता है. मीन्स यू आर प्रमोटेड इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर. वैसा वर्चुअल क्लासरूम में नहीं होता है स्टूडेंट्स. उसमें क्या होता है, तुमको लेवल होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अकॉर्डिंग टू योर एज. तुम्हारा एज कितना है उसके अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर का लेवल सेट किया जाता है और उसी तरह से तुमको उसके अंदर रीड करना होता है. तुम्हारा जो टीचर है वो कंप्यूटर होता है. ओके. तुम्हारा जो टीचर होता है वो कंप्यूटर होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल टीचर. उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल टीचर. मीन्स वहाँ पे कोई भी टीचर नहीं होगा जो फिजिकल टेक्स्ट बुक आज मैं हाथ में लेके तुमको पढ़ा रही हूँ, जो तुम लोग बैग में स्टफ भर के क्लास में लेके आते हो, ऐसा कुछ भी स्टफ लाना नहीं है. जो भी टेक्स्ट बुक है वो पेपर पर प्रिंटेड नहीं होगी, जो है वो तुम लोगों को मोबाइल में या कंप्यूटर में दिखेगा. जैसे अभी देखो तुम्हारे पास शायद से ये दो टेक्स्ट बुक अभी ना हो, तो तुम लोग क्या करोगे, मोबाइल में ये टेक्स्ट बुक की PDF डाउनलोड करोगे और फिर उसमें से लेसन रीड करोगे. बराबर है कि नहीं? तो उसी तरह से ये चैप्टर है जो हम लोगों को फ्यूचर क्लासरूम्स के बारे में बता रहे हैं.
और इसमें ये कंपेयर किया गया है कि जब फिजिकल मीन्स जब एक्चुअल क्लासरूम्स थे तो बच्चों को क्लास में एंजॉय करने में बहुत मजा आता था, जैसे तुम लोग करते हो, आपस में बातें करना, एक दूसरे का नाश्ता खा लेना, कोई भी टीचर आए तो जो भी तुम लोगों को बोलता है मजाक मस्ती करना, वैसे तुमको वर्चुअल क्लासरूम में मिलेगा नहीं। मीन्स हमें क्या पता चला कि जब वो बच्चे होंगे, जस्ट इमेजिन जब वो फ्यूचर के बच्चे होंगे 2157 ईयर तक चल रहा होगा उसके आसपास, जब वो बच्चे होंगे तो उनको ना क्लासमेट्स होंगे ना उनके कोई टीचर होंगे। जैसे तुम लोग बोलते हैं अरे यार मेरी इंग्लिश की टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, अरे हमारी मैथ्स की तो बहुत फ्रेंडली है, हमारी एसएस की टीचर तो बहुत बोलती है, ऐसे जो तुम लोग अलग अलग टीचर के ऊपर कमेंट्स करते हो ना, वो तुमको कमेंट्स करने को मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर ही नहीं होंगे, ना तुमको स्कूल में आना पड़ेगा, ना तुम्हारा यूनिफॉर्म होगा, कुछ भी नहीं। तुमको सिर्फ क्लासरूम, तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हारा क्लासरूम होगा और तुम लोगों को सिर्फ वहीं पे बैठ के पढ़ना होगा। तो तब जब वो फ्यूचर के जब बच्चे होंगे तो वो इमेजिन करेंगे कि दोज स्टूडेंट्स हु वर गोइंग इन द एक्चुअल क्लासरूम व्हाट द फन दे हैड। अभी पता चला इसका टाइटल क्या है। मीन्स तब उन लोगों को पता चलेगा बच्चों को कि जब जैसे अभी हम लोग उस वक्त दादा दादी नाना नानी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, पर दादा जो भी है, तब वो बोलेंगे कि अरे मेरे दादा दादी स्कूल में जाते थे तो उनके एक्चुअल क्लास होते थे, उनके टीचर उनको पढ़ाते थे, उनका यूनिफॉर्म होता था, उनके बैग्स होते थे, नाश्ता करते थे, ऐसे वो लोग बातें करेंगे। और तब उनको एक पछतावा होगा कि हमें भी ऐसा स्कूल चाहिए था, हमें भी ऐसे सब फ्रेंड्स चाहिए थे, हमारे भी अलग अलग टीचर होने चाहिए थे, ऐसा उनको रिग्रेट और पछतावा फील होगा। तो यही जो पछतावा है वो एक लड़की है जिसका नाम है मार्जी, उसने फील किया हुआ है। तो देखो अभी मैं चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। आई होप तुम लोगों को टाइटल क्लियर हुआ होगा कि उसका टाइटल क्या है। सो हियर मार्जी एज आई टोल्ड यू इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। वो डायरी में लिख रही है, क्या लिख रही है देखो ऑन द पेज, उसने डायरी में पेज पे डेट लिखी 17 मई 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने बुक में क्या लिखा पता है डायरी में, कि टॉमी जो उसका भाई है उसको एक बुक मिली। सीइंग दैट बुक दे बोथ वर वेरी सरप्राइज। उन्होंने जब बुक को देखा तो वो बहुत सरप्राइज हो गई कि अरे ये क्या है, बुक है, हमको तो ऐसे बुक है ही नहीं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स होते हैं और ऐसे फिजिकल पेपर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। उसको देख के बहुत उसको सरप्राइज लगा, इसीलिए उसने वो डायरी में नोट डाउन किया। फिर क्या हुआ देखो, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. उसने बताया टॉमी को, जब टॉमी ने उसे बताया कि मुझे दादाजी ने ऐसा बताया कि जब वो छोटे थे they used to use such type of books on that time. तब वो लोग इस तरह के बुक्स का यूज करते थे जो अभी नहीं है, अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। सिर्फ एक बुक उनको मिली, वो भी उनके दादाजी की थी जब वो छोटे थे। तो उनके दादाजी ने कहा कि हम लोग ऐसे पेपर की प्रिंट की हुई बुक पढ़ते थे जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहे हो। फिर यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स है स्टूडेंट्स, मैं रीड करती हूँ। क्रिंकली का मीनिंग होता है विथ मेनी फोल्ड्स एंड लाइन्स। एटिक का मीनिंग होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। स्कॉर्नफुल का मीनिंग होता है शोइंग यू दैट समथिंग इज वर्थलेस यानी वेस्टेज। दूसरा है स्लॉट का मीनिंग होता है जगह, गिवन प्लेस। देन गियर्ड का मीनिंग होता है एडजस्ट एंड लोफ्टिली का मीनिंग होता है इन अ सुपीरियर वे। तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन। सो मार्जी के दादाजी उसको बोल रहे हैं देखो, दे टर्न द पेजेस व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज ऑफुली फन टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. जब टॉमी ने वो बुक ओपन की, he got surprised. उसको क्या सरप्राइज हुआ पता है? वो बोल रहा था कि ये बुक कैसी है। उसके अंदर जब हम लोग पेज टर्न करते हैं तो सालों से अगर हम लोग सालों के बाद भी अगर पेज टर्न करेंगे तो वही डेटा हमें वहाँ पे मिलेगा। ये देख के उसको सरप्राइज हुआ, क्योंकि उनके जो वर्चुअल क्लासरूम्स थे उसमें क्या होता था, जैसे ही उनकी लेवल चेंज हो जाती थी उनका बुक चेंज हो जाता था। ओके, जैसे अभी नहीं, तुम लोग देखो स्टैंडर्ड 8th में थे तो तुम्हारी स्टैंडर्ड 8th की जो बुक है अभी वो क्या हो गई, वर्थलेस, यूजलेस हो गई ना, उसका यूज है स्टैंडर्ड 9th में नहीं। तो उस तरह से वो बोल रहे हैं कि ये जो बुक्स है एक ही साल हमें यूज करनी होती है, फिर तो वर्थलेस हो जाती है।
तो उनको ये सुन के बहुत सरप्राइज हुआ। फिर बाद में वो बोलती है देखो इट इज अ वेस्ट नो, सो सेम विथ माइन सेड मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। वो बोलती है कि हाँ मेरे साथ भी होता है, वो तो छोटी बच्ची थी 11 ईयर्स ओल्ड, उसके भाई ने शायद उससे वो 2 लेवल आगे था, 2 ईयर्स बड़ा था एल्डर ब्रदर, तो उसने शायद देखा होगा, इसलिए वो बोल रहा है कि हाँ मैंने भी देखी है बट मैंने थोड़ी ज़्यादा बुक्स देखी है। मार्जी वॉज कॉन्फ्यूज, स्कूल व्हाट देयर इज राइट टू अबाउट द स्कूल एंड आई हेट स्कूल। बोलती स्कूल नो 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 नो, मुझे स्कूल का नाम नहीं सुनना है, क्योंकि स्कूल का नाम सुनते ही मुझे कांटे आते हैं, जैसे तुम लोगों को आते हैं कि नहीं, जैसे तुम्हारे टीचर कुछ होमवर्क देती है और दूसरे दिन वो चेक करना होता है, तुम लोग भूल जाते हो उसको करना, फिर तुम लोग क्या बोलते हो, अरे यार क्या है स्कूल में, हम अभी वो टीचर छोड़ेगी नहीं हम लोगों को, ऐसा बोलते हो कि नहीं। वैसे ही तो यहाँ पे वही है, मार्जी बोल रही नहीं मुझे स्कूल तो चाहिए ही नहीं। अभी क्यों वो ऐसा बोलती है उसका रीजन आगे दिया है देखो। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। The mechanical teacher had been giving her the test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully, sent for the county inspector. वो क्यों यहाँ पे डिप्रेशन में थी स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका जो टेस्ट चल रहा था एक सब्जेक्ट में जियोग्राफी में, उसके अंदर शी इज डूइंग बैडली, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम भी दुखी थी। ओके उनको देख के इसका भी इंटरेस्ट लो हो रहा था, इसलिए वो बोल रहे थे कि मुझे स्कूल में नहीं जाना है, क्योंकि कितनी भी मेहनत करो मार्क्स आते ही नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसीलिए वो दुखी थी। और फिर क्या हुआ देखो, उसकी जो मॉम है उन्होंने वो जो कंप्यूटर था मार्जी का, यानी उसका मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर मीन्स व्हाट, मैकेनिकल टीचर, उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको रिपेयर करने के लिए एक पर्सन को बुलाया, उसका प्रोफेशन था काउंटी इंस्पेक्टर, प्रोफेशन है उसका नाम नहीं था, प्रोफेशन, ये उसका प्रोफेशन क्या था कि वो सारे जो पार्ट्स है कंप्यूटर को चेक करना, उसको रिपेयर करना, बच्चों की लेवल जो भी है उनकी लेवल उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को एडजस्ट करना, ऐसे काम वो करते थे। फिर क्या हुआ देखो, काउंटी इंस्पेक्टर को देख के मार्जी उसको देख रही है और उसके बारे में वो नरेशन कर रही है, देखो क्या बोलती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour and so. There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and the test papers. She always had to write them out in a punch code. They had her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. देखो, as I told you, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर वहाँ पे आया उसके बारे में बोल रहे कि वो छोटा सा मैन है, पतला सा, उसका जो फेस है वो रेड फेस है, उसके हाथ में बड़ा सा बॉक्स है और सूटकेस है, हम लोग बोलेंगे वो बॉक्स के अंदर टूल्स वायर सब कुछ रखा हुआ है। वो जब ऐसे एंटर होता है, उसने मार्जी को एप्पल दिया और वो कंप्यूटर उसके मैकेनिकल टीचर को उठा के लेके गए। अभी मार्जी बहुत खुश थी क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर लेके गए उसको ऐसा कि अभी ये बहुत दिनों बाद देगा, क्योंकि ऐसे एक इंसिडेंट उसके भाई के साथ हुई थी। जब उसके भाई का हिस्ट्री सेक्टर टॉमी का पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, तब क्या किया उन लोगों ने, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसके मैकेनिकल टीचर को 1-2 महीने तक लेके गए, तब तक टॉमी फ्री। इसको यही चाहिए था, उसको भी ऐसा ही लगे कि हाश अभी मेरा भी मैकेनिकल टीचर ये काउंटी इंस्पेक्टर लेके जाएगा और जब वो वापस लेके आएगा तब तक तो 1 महीना 15 दिन जो भी है तब तक मैं फ्री रहूँगी। अभी वो ऐसा क्यों सोच रही थी, क्योंकि जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि उसका जो टेस्ट चल रहा था, उनको होमवर्क, जैसे हम लोग तुमको अभी होमवर्क देते हैं वैसे वो मैकेनिकल टीचर के अंदर एक स्लॉट था, कंप्यूटर के अंदर पता है अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, उसके अंदर हम लोगों को डेटा रखना होता है। ओके, जैसे अपने ने फोल्डर बनाते हैं उस तरह से समझ लो, तो उसको ये फोल्डर के अंदर होमवर्क, उसके टेस्ट सब रखने होते थे, और जब वो उसमें रख रही थी तो उसको क्या हो रहा था, मार्क्स कम आ रहे थे, क्योंकि वो जो मैकेनिकल टीचर है वो तुरंत चेकिंग करके दे देता था। जैसे अभी देखो, अभी हम लोग तुम्हारे टेस्ट लेते हैं, तो जैसे मैंने अभी टेस्ट लिया तो उसका मैं मार्क्स कब देती हूँ, 2 दिन बाद। पर उन लोगों का जो काउंटी इंस्पेक्टर वो जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या करता था, विदिन मिनट उसकी टेस्ट चेक करके देता था, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए वो डिप्रेशन में थी। और जब उसका मैकेनिकल टीचर खराब हो गया तो वो बहुत खुश हो गई, चलो शांति थोड़े दिनों के लिए। फिर क्या हुआ देखो, टॉमी लुक्ड एट हर विद द सुपीरियर वेज बिकॉज
It's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago, Margie was heard. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. टॉमी उसको बता रहा है कि तू इतनी नर्वस क्यों है, पुराने समय में तो एक स्कूल थी, वहाँ पे बच्चे जाते थे. वो बोल रहे हाँ ऐसा था. तो फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे रीड राइट सब करना पड़ता है. तो टॉमी बोल रहा है कि सेंचुरी से आगे, यानी सेंचुरी यानी 100 ईयर्स का टाइम स्पेन होता है. तो 100 ईयर्स पहले सच में ऐसे स्कूल्स होते थे, वहाँ पे रोज़ बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, वहाँ उनको लर्निंग टीचिंग लर्निंग जो भी है, जो भी सब कुछ सिखाया जाता था, वहीं पे उनका सब कुछ काम होता था. और ये जो टेक्स्ट बुक है वहीं पे उनको पढ़ाई जाती थी. फिर वो बोल रही है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. वो बोल रहे रेगुलर यानी देखो उनके समय में रेगुलर टीचर कौन होगा, कंप्यूटर यानी मैकेनिकल टीचर. तो वो बोल रहे हैं कि उस वक्त उनके रेगुलर टीचर नहीं थे, मैन यानी ह्यूमन, उनको ह्यूमंस पढ़ाते थे टीचर. वो सी हियरिंग दिस मार्जी वाज सरप्राइज, उसको इतना सरप्राइज लगा, हाँ सच में ह्यूमंस पढ़ाते थे, कैसे. फिर क्या हुआ देखो, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. You don't know, Margie, the teacher didn't live in the house. They had a special building and all kids went there and all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. वो बोल रहा है देखो, टॉमी उसको बता रहा है कि मार्जी देख, ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है. उनके एक ही टीचर होते थे, सब्जेक्ट वाइज टीचर चेंज होते थे, और सारे बच्चे जैसे तुम लोग लास्ट ईयर 8th में थे, तो स्टैंडर्ड 8th के जितने भी बच्चे थे 40-45, वो एक साथ एक ही कोर्स पढ़ते थे. ये सुन के मार्जी को सरप्राइज लगा, क्योंकि मैंने जैसे तुमको बताया कि उनके एज के अकॉर्डिंग लेवल सेट किए जाते थे. अगर वो एज में जैसे मार्जी वो मीन्स एवरेज गर्ल थी, तो उसका जो लेवल है वो थोड़ा डाउन होगा. पर मार्जी की एज वाला अगर कोई दूसरा बच्चा उससे भी होशियार है तो उसका लेवल कैसा होगा, ऑब्वियसली थोड़ा हायर होगा. तो ये सोच के मार्जी बोल रही कि कितना अच्छा था नहीं, उस वक्त सारे बच्चे एक साथ मस्त पढ़ते थे और सभी को एक जैसा ही पढ़ना होता था. सो नाइस, उसको इतना अच्छा लग रहा है देखो. फिर टॉमी आगे बोलता है कि और तुझे पता है उन लोगों का एक ही क्लासरूम होता था और दे यूज्ड टू गो इन द सेम बिल्डिंग एवरी डे, कि उनको एक ही बिल्डिंग जिसका नाम है स्कूल, वहाँ पे जाना पड़ता था और सब बच्चे एक साथ एक ही क्लास में बैठ के एक ही तरह का होमवर्क और जो भी है पढ़ाई करते थे. ये सुन के मार्जी को बहुत ही सरप्राइज लगा. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to taught differently. Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up, not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old book touched beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same every time day, Saturday and except Saturday and Sunday. Because her mother said, little girls learn better if they learn at regular hours. यहाँ पे बताया है देखो, जैसे तुम लोगों के पर्टिकुलर आवर्स होते हैं, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, किसी की नून शिफ्ट होती है, बराबर कि नहीं. फिर उसके अंदर क्या करना होता है तुम लोगों को, 7:30 को स्कूल स्टार्ट होती है, तो 7:30 to 8:15 फर्स्ट लेक्चर, 8:15 to 8:50 सेकेंड लेक्चर. तो यहाँ पे उनकी मॉम ने उनके लिए एक स्कूल यानी उनका जो खुद का रूम था, वीकेंड से बेडरूम भी ले सकते हो तुम लोग. तो their mom supposed to give them the bedroom for study, और उनका एक पर्टिकुलर आवर रखा था. वो बोल रहे हैं कि छोटे बच्चों को हमेशा रेगुलर ही पढ़ाई करनी चाहिए, उनका टाइम कभी भी मिसमैच होना चाहिए नहीं तो उनको पढ़ाई समझ में आती नहीं है. ऐसा उनकी मॉम ने उनको बता के रखा था. जब टॉमी और मार्जी एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उनकी मॉम ने उनको बुलाया और बताया कि मार्जी, टॉमी, कम एंड जॉइन द स्कूल. वो बोलते कि चलो आ जाओ और स्कूल में बैठ जाओ, यानी स्कूल में बैठ जाओ यानी कहाँ बैठ जाओ, उनकी क्लास, उनका जो रूम था वहाँ चेयर पे बैठो कंप्यूटर के सामने. उनका कंप्यूटर ही उनका टीचर था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल टीचर. फिर बाद में देखो मार्जी का क्लासरूम कहाँ था स्टूडेंट्स,
मार्जी का जो क्लासरूम था उसके बेडरूम के राइट साइड में, यहाँ उसका बेडरूम, और जैसे ही वो राइट टर्न लेते वहाँ पे उसका क्लासरूम था। यानी उसको वहाँ पे रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठ जाने का, पर्टिकुलर आवर्स तक, 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स जितना उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पढ़ाई करने की, एक्सेप्ट सैटरडे संडे। 2 दिन छुट्टी होती थी, वीक में उनको 5 दिन कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता था, और 2 दिन सैटरडे और संडे उन लोगों को हॉलीडे होता था। फिर क्या हुआ देखो, द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions, please insert yesterday's homework in the proper slot। अभी वो जो रोबोट है, मैकेनिकल टीचर को हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे, रोबोट बोलेंगे, उसने क्या बोला देखो, इंस्ट्रक्शन दी। जैसे ही उन्होंने उनका मैकेनिकल टीचर को ऑन किया तो उसने बोला कि चलो आज हम लोग अरिथमेटिक लेसन्स पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं तुम लोगों को फ्रैक्शंस जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। उससे पहले तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हारा जो प्रीवियस होमवर्क है उसको तुम लोगों को एक स्लॉट के अंदर डाल देना है, पहले मैं उसको चेक करूंगा। अभी देखो उसका आवाज जो है वो सेट था, है कि नहीं। अभी एक्चुअल क्लासरूम में क्या होता है, टीचर क्लास में आते हैं, फिर तुम लोग उनको विश करते हो, गुड मॉर्निंग मैम, फिर हम लोग गुस्सा करते हैं, उसमें 5-10 मिनट चले जाते हैं, फिर कैसे हो, क्या हो, ये वो करके और 5 मिनट चले जाते हैं, फिर 2-10 मिनट बाकी होते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं। वैसा इन लोगों का था नहीं, जैसे ही उनका लेक्चर स्टार्ट होता है उन लोगों को बैठ जाने का, नो एक्सक्यूज एट ऑल, गुड मॉर्निंग बोलो ना बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर तुम लोग आते हो तो हर एक टीचर को देखते हो, वो इंग्लिश की टीचर कितनी सुंदर है नहीं, और वो दूसरी जो है वो ज्योग्राफी की कैसी लगती है नहीं, वो स्टैट के सर कितने पतले हैं नहीं, वो मैथ्स के सर कितने हाइटेड है नहीं, ऐसे तुम लोग कमेंट्स करते हो। तो ये जो कमेंट्स है वो उन लोगों को अभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो मज़ा है तुम लोगों को, जो अभी तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, वो इन लोगों को नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो टीचर है वो भद्दा, ब्लैक कलर का स्क्रीन, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलता है, उसको ना हंसी आती है, ना रोना आता है, ना डांटना आता है, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मार्क चेक करता है, दे देता है, मार्क चेक करता है। मीन्स वी कैन से इन वर्चुअल क्लासरूम नो इमोशंस आर देयर, इट इज अ इमोशनलेस क्लास। कुछ इमोशंस है नहीं। देखो उसमें भी एक मज़ा होता है, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट है, हम लोगों ने भी टीचर के काफ़ी सारे कमेंट्स टीचर के लिए पास किए हैं। बैड कमेंट्स ऐसा मैंने नहीं बोला, नहीं तो तुम लोग बोले अरे वाह वो इंग्लिश के टीचर तो ऐसा बोलते टीचर को कमेंट्स करने, नो, कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते हैं। फिर तुम्हारे घर के एटमोस्फेयर के ऊपर जाता है कि तुम लोग टीचर को किस तरह की बातें कर रहे हो। कुछ बच्चे खराब होते हैं तो वो खराब ही बोलते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं तो वो अच्छे ही बोलते हैं। तो इस तरह से वो जो तुम्हारा एंजॉयमेंट है, एक मज़ा है, वो इस क्लासरूम में नहीं है। जैसे अभी देखो मैं तुम लोगों को पढ़ा रही है ना, अभी तुम लोग शायद ही मुझे जानते होंगे, फिर बाद में तुम लोग अरे कौन थे वो मैम, कोई अभी जैसे मैंने कुछ इंग्लिश में वर्ड्स बोले, कोई बोलेगा अरे यार क्या बोला रहे, उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये वर्चुअल क्लासरूम में होती है। अगर सपोज जस्ट इमेजिन करो यही तुम्हारा एक्चुअल क्लासरूम होता तो क्या होता, तुम लोग बोलते अरे मैडम आपने वो क्या बोला, अभी वो समझ में नहीं आया, फिर से बोलो, तो अभी बोल सकते हो तुम लोग नहीं। यानी ये जो डाउट्स है, ये जो तुम्हारे अंदर के जो होप्स एंड एस्पिरेशंस निकलते हैं ना, क्यूरियोसिटी, वो तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते नहीं हो। किसके अंदर? वर्चुअल क्लासरूम के अंदर। यही डिफरेंस है एक्चुअल और वर्चुअल क्लासरूम में। और ये जो बच्चे हैं यहाँ पे वो देख रहे हैं, देखो मार्जी जो है वो किस तरह से अपने वर्चुअल क्लासरूम के अंदर बैठी हुई है, उसका जो टीचर है वो उसको देख रहा है और वो टीचर को देख रही है ना, उनके अंदर कोई हंसी मजाक हो रही है ना कुछ भी हो रहा है। तो इस तरह का जो क्लासरूम है जहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, सिर्फ जाके बैठ जाना है, तो सोचो जस्ट इमेजिन कितना बोरिंग होगा ना, है ना। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है। अभी हम लोग आगे बढ़ते, देखो मार्जी डिड सो विद अ साय, शी वाज थिंकिंग अबाउट the old schools they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. यहाँ पे बताया, देखो मार्जी को टॉमी बता रहा है कि उस वक्त जब मेरे दादाजी के भी दादाजी, लिसन स्टूडेंट्स, मेरे दादाजी के भी दादाजी, ऐसे टॉमी बोल रहा है, और वो जब छोटे थे तब वो लोग क्या करते थे, एक साथ स्कूल से, जैसे तुम लोग स्कूल वैन में बैठ के आते हो, कोई बस में बैठ के आता है, कोई पैदल चल के आता है, कोई साइकिल पे आता है कि नहीं। तुम लोग मस्त बातें करते करते आते हो, रोड अपना ही है ऐसा समझ के आते हो, बराबर ना, जिसको हॉर्न बजाना है बजाएगा, है ना। वो जो एंजॉयमेंट है वो बोल रहे हैं कि मेरे दादाजी के दादाजी जब छोटे थे तब उन्होंने ऐसा एंजॉयमेंट किया है जो तुम लोग अभी कर रहे हो, ओके। बट जब
हम लोग 200 साल की अगर बात करें, 200 साल के बाद जो क्लासरूम होगा, अभी जो स्कूल नाम की एक बिल्डिंग है जो तुमको बिल्कुल नफरत है, तुम लोग खुद बोलते हो अरे यार भगवान ने यार तब सब अच्छा बनाया, खाली एक खराब बना दिया स्कूल, वो चाहिए ही नहीं थी, बराबर कि नहीं। लॉकडाउन के अंदर तुम्हारे ऊपर काफी सारे कमेंट्स आए, क्या कमेंट्स आए पता है? सब कंटल गए, मम्मियाँ कंटल गई, रोज नया नया खाना बना के, पापा कंटल गए, घर पे बैठ गए, बच्चे नहीं कंटले, क्यों? स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, मजे करो, वीडियो गेम खेलो, कोई बोलता ही नहीं। मीन्स व्हाट कि स्कूल जो है, जो तुमको काफी बच्चों को उससे ऐसा कि नहीं चाहिए, वो उस वक्त नहीं थी सच में, और उनको कंप्यूटर के अंदर ही उसको पढ़ाई करनी पड़ती। फिर आगे बढ़ते देखो, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तब मार्जी ने क्या किया, बैठ गई उसके टीचर के सामने, वो तो कंप्यूटर था डब्बा जैसे, हम ना उसको मोटा बोल सकते, ना पतला, ना गोरा, ना काला, कुछ नहीं, वो ऐसा ही था। वो बैठ गई उसके सामने, उसने जो फ्रैक्शन होते 1/2 and 1/4 डाल दिया ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वो अपना काम करने लगा, ये वेट कर रही थी। तब उसके माइंड में विचार आया कि सच में जो पहले 200 साल पहले मेरे दादाजी के दादाजी जब पढ़े हैं, वो स्कूल कितने मस्त थे, उनके टीचर भी कितने मस्त थे, और उनकी बुक ऐसे फिजिकल जिसके अंदर पेजेस थे, जिसके अंदर इस तरह की राइटिंग थी, जैसे ये बुक है, अभी मैं आज इसको तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर मैं अगले साल भी ये पढ़ाऊंगी तो इसके लेटर चेंज होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये फिजिकल टेक्स्ट बुक है, ये चेंज होगी नहीं। और जो वर्चुअल क्लासरूम है उसमें क्या होता है, टेक्स्ट बुक बदलती रहती है, उसका कंटेंट जो है वो लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसलिए मार्जी बोलती है कि इन द ओल्डन डेज द स्कूल which were present in olden days, they have a real fun, and the students were making the real fun. That's why the author has given the name to the chapter, the fun they had. उनको कितना मजा आता था स्कूल में जाना, मस्ती करना, ये करना, वो करना, जो टॉमी और मार्जी आज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि अभी कोइंसिडेंस ये हुआ है कि ये चैप्टर मैंने जो चलाया है ना, वो वर्चुअल क्लासरूम, आज हमारी वही सिचुएशन है, वर्चुअल क्लासरूम की तरह ही तुम लोग घर बैठ के ये पढ़ने वाले हो, तो इजीली वी कैन से दैट इट इज अ वर्चुअल क्लासरूम, है ना, यानी तुम लोग उसको एंजॉय कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर अगर तुम लोग अभी रीड करोगे घर पे, तुमको क्या करना है, देखो जैसे मैंने तुमको बताया, ये चैप्टर अगर टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास नहीं, देखो मैंने तुमको लिखा है यहाँ, ये सब 2 टेक्स्ट बुक है, अगर ये टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है, तुम लोग रीड कर सकते हो, उसमें पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक ही है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते देखो, इसके अंदर तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, ओके। तो अभी इसका वेट नहीं करना कि हमारे मैम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और ये जो जितने क्वेश्चन आंसर्स है वो बताएंगे, वो मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, तुमको खुद को करना है और सीखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्लासरूम एंड वर्चुअल क्लासरूम, और बाद में डिसाइड भी करना है कि कौन सा क्लासरूम अच्छा होता है। और जब लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल खुलेगी, तो मुझे स्पेशली बोलना है, अरे मैम आपने वो चैप्टर पढ़ाया था ना वर्चुअल क्लासरूम का और एक्चुअल का, हम लोग सच में बोलते हैं कि हमें तो एक्चुअल क्लासरूम ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो मज़ा है वो कहीं पे भी नहीं है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर्स तुम लोग बेटा कंप्लीट करना। अगर तुमको इसके आंसर की चाहिए तो ये भी तुमको नेट पे मिलेगी, सिर्फ लिखना है गूगल पे आंसर की ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक्स स्टैंडर्ड 9, उसके अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है, मैंने सब कुछ तुमको बता दिया। आई होप तुम लोग ये घर पे करोगे, लेजीनेस दिखाओगे नहीं, जैसे मार्जी और टॉमी ने अपना एक टाइम टेबल बना के रखा था घर पे कि वो पर्टिकुलर टाइम पे ही पढ़ते थे, उनके मॉम ने उनको बता के रखा था, वैसे ही अभी भले स्कूल चालू नहीं है, तुम लोगों को वर्चुअल क्लासरूम का जो फंडा है वही यूज करना है, ताकि इससे तुमको इजी भी पड़ेगा और समझ में भी आएगा, ओके। और अगर कुछ डाउट्स है खुद क्लियर करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो, क्योंकि जैसे अभी बोला मैंने वर्चुअल क्लासरूम का कंसेप्ट चल रहा है, तो जो भी डाउट क्लैरिफिकेशन है वो तुमको खुद को ही करना है। तो अभी मैं यहाँ पे मेरा जो लेक्चर है वो एंड करती हूँ, ओके। डाउट हो तुम लोग खुद रीड करना, बाय।